જય સચ્ચિદાનંદ. આ 2 દિવસના પ્રોગ્રામમાં તમને તો ખબર પડી ગઈ કે આપતો પુત્ર સત્સંગ સિવાય બીજું બધું ઘણું બધું કરે છે. ડૉક્ટર સાહેબ ખાલી આજે આપણા હાથમાં આવ્યા છે કંઈક નવું બતાડવા માટે. નવું બતાડવાનું એટલે અનુભવ તો દાદાના વિજ્ઞાનનો જ છે, પણ આજે આપણે એમનો લાભ મળશે. ડૉક્ટર સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન સાથે અમે લોકોને જે સંજોગ મળેલો તે 8 વાગે સત્સંગ પૂરો થઈ જાય દાદાનો, અહીંયા બરોડા કે જ્યાં હોય. દાદા થોડું અલ્પાહાર લેવાનો હોય તો લે, પછી 5-6 જણનો હળવો ક્લાસ ચાલતો હોય, રિસ્ટ્રિક્ટેડ એડમિશન્સ હોય. પણ આપણે આજે બધા દાદાના દરબારમાં છીએ એટલે હળવાશથી પણ દાદાને હાજર કરીને કંઈક પ્રાર્થના કરીએ. પણ મેં જોયેલું કે દાદા ભલે હળવાશમાં હોય પણ કામ બહુ મોટું કરતા હોય, હસતા હસતા રમતા રમતા. એટલે એક સહેજ પ્રાર્થના કરીને પછી ચાલુ કરીએ. હે દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા, હે દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા, આપ અમારી સૌની સાથે આપ અમારી સૌની સાથે અને અમારા સૌમાં એવી રીતે બિરાજમાન રહી પ્રકાશો, એવી રીતે બિરાજમાન રહી પ્રકાશો કે જેથી કરીને આપના અણુએ અણુમાં, આપના પ્રત્યેક શ્વાસો જે તપોબળ, યોગ બળ, શુદ્ધિનું બળ અને બીજું આખા લોકાલોકના વિજ્ઞાનનું બળ છે, તે અમારામાં પણ પ્રકાશમાન થાય અને અમે પણ રિલેટિવ અને રિયલ બંનેમાં એ વિજ્ઞાનનો લાભ લઈ ખૂબ સુંદર પુરુષાર્થ કરી શકીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે મને આમ તો કંઈ આવડે નહીં, આ લોકોને બધું આવડે, એટલે મેં દાદાને પ્રાર્થના કરી કે દાદા કશુંક એવું સુજાડો કે હળવાશમાં પણ કંઈક સુંદર થાય. હવે જોઈએ દાદા. એટલે મને દાદાએ 4 એરિયા સુજાડ્યા છે. જેટલા લેવાશે એટલા લઈશું, એવું રિસ્ટ્રિક્શન નથી કે 4 પૂરા કરવા. પહેલો એરિયા મને દાદાએ સુજાડ્યો કે જેના માટે દાદાનું સમગ્ર અસ્તિત્વ અને જીવન આજનું નહીં પણ કેટલાય અવતારથી જે ચાલ્યું આવ્યું, તો આપણે બધાએ જોયું કે 10 લાખ વર્ષે કલ્યાણ માટે દાદાએ કહ્યું ને, અમોને મોક્ષ મળતો તો પણ રોકાઈ ગયા જાણી જગત કલ્યાણ અર્થે. અને એકલું આત્મા નહીં પણ બધી જ પ્રકારનું, એમ 10 લાખ વર્ષોથી જે બંધ હતું. એટલે પહેલો એરિયા છે કે આપણે બધા એમના કલ્યાણની ભાવનાનો આજે આનંદ માણી રહ્યા છીએ, લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તો એ કલ્યાણ યજ્ઞમાં બીજી જુદી જુદી રીતે હું શું ભાવના, હવે પહેલી તો આપણામાં કરવાની શક્તિ તો લિમિટેડ છે, કદાચ છે કે નહીં, પણ દાદાના વિજ્ઞાનનો મૂળ પાયો શાંતિલાલભાઈ, આપણે બધાએ ભાગ લેવાનો છે આમાં. હું તો ખાલી અહીંયા પપેટ છું, થોડુંક આમાં સંકોરી આપીશ. તો દાદાએ જે મૂક્યું રાજચંદ્રની ભાવના તે વખતની, આમ તો ઋષભદેવ ભગવાનના વખતથી ચાલી આવેલી, પણ ભાવનાનું બળ રાજચંદ્રે ના કહ્યું કે એટલે કેટલાક શિષ્યોની સભા સ્થાપન કરી છે, વિશ્વમાં પર્યટન કરીને મારો ધર્મ જે મહાવીરે એમના સમયમાં કેટલેક અંશે ચાલતો કર્યો હતો એ બધે ફેલાવીશું. જોજો તો ખરા વિશ્વને કેવા સ્વરૂપમાં મૂકીએ છીએ. એ જ આખો યોગ ભાવનાથી, એટલે મૂળ જે પાયો વિતરાગોએ કહ્યો કે જો તમને ભાવના કરતાં આવડશે, અને હરીશભાઈને બધાએ કહે છે કે અહીંયા કરેલી બધી ભાવના પૂરી થાય છે. આપણને બધાને એ અનુભવ છે કે અહીંયા દાદા હાજર છે, તો આપણે 5-7 મિનિટ વાતો કરશું ને 5 મિનિટ ભાવના માટે વચ્ચે બોલવા પણ આપશું લોકોને કે આપણે શું ભાવના કરીએ અહીંયા, જેને જે આવડે તે, કે જેથી કરીને દાદાએ આપણને કહેલું કે આ મારા જગત કલ્યાણના યજ્ઞમાં મારા બધા મહાત્માનો ટેકો છે અને હોવો જોઈએ. કોઈ ખૂંટો છે, કોઈ ખીલી છે, કોઈ આંગળી છે. હવે એ ટેકો મુખ્યત્વે ભાવના સ્વરૂપે છે. શું છે? ફિઝિકલી હાજર હોય પણ ખરા, ના પણ હોય, વધતું હોય, ખૂટતું હોય, એ બધી વાતો આપણે થોડી કરીશું.
તો એ શું કરી શકીએ આપણે અહીંયા ભાવના, એ 4-5 મિનિટ આંખ બંધ કરીને ભાવનાય કરશું. અને જ્યારે આ વાત કરીએ છીએ ત્યારે સેવા જોડાય જ છે એની જોડે, એટલે એ પણ થોડીક વાત આપણે કરીએ. અને એના માટે 15 થી 20 મિનિટ ફાળવવું. પછી બીજું મને સૂઝ્યું છે આજે લક્ષ્મી સંબંધીનું, કે દાદાએ જે રીતે લક્ષ્મી વાપરી જાણી, મારે બીજી બધી બહુ ડિટેલમાં નથી જવું એની, પણ એ વિજ્ઞાન જે એમણે ખુલ્લું કર્યું અને એમની લક્ષ્મીને એમનો જે લક્ષ્મી વાપરવાનો બીજું બધું સાયન્સ, થોડી ઘણી જો તમને ગમે તો એ વાતો કરીશું, નહીં ગમે તો તમારે કહેવાનું કટ, તો મારી પાસે બીજા સેક્શન હાજર છે, ડોન્ટ વરી. એટલે લક્ષ્મી અને કલ્યાણ યજ્ઞ અને લક્ષ્મી અને વ્યવહારમાં શું આપણે થોડુંક આપણી જાતને કરી શકીએ. ત્રીજું છે આહારની વાત. રાત્રે 12 વાગે ભલે ખાજો, પણ થોડુંક આહાર સંબંધી પણ આપણે થોડીક જો વાતો ગમે તો કરીશું, કે જેથી કરીને લોકોને કોલેસ્ટ્રોલની ગોળીઓ અને ડાયાબિટીસની ગોળીઓ અને હાઇપરટેન્શન થોડુંક ઓછું તો થાય એક બાજુ, પણ બીજું દાદાના જ્ઞાનમાં આપણને સહાયક થાય. અને છેલ્લે જો કદાચ ટાઈમ બચ્યો તો વાણીની વાત કરીશું, ને જ નહીં કરીએ. આ 4 એરિયા બધાને 3 પહેલાં 3 મુખ્ય. ઓલરાઈટ છે? મહાત્માઓ હાથ ઊંચો કરો તો આગળ. ઓ, બધા હાથ ઊંચા છે, ગુડ. ચાલો, તો પહેલી પરીક્ષામાં દાદાજીએ મને પાસ કર્યો. હવે જ્યારે ભાવનાની અને એ વાત આપણે કરીએ છીએ તો સાધારણ શરૂઆત કરું છું, પછી તો બીજા જો બધાને બોલવાની છૂટ છે, પણ જે મર્યાદા હશે 1 મિનિટ 2 મિનિટ 1 મિનિટ 2 મિનિટ ઓછામાં કેટલું વધારે કહેવું એ દાદાને પ્રાર્થના કરવાની. પણ ઇન્વોલ્વ બધા થજો તો મને આનંદ આવશે. દાદા જાગૃત જીવશે આપણા બધાની અંદર. એટલે દાદા ભગવાને કંઈ પણ કરતા, પણ એમનો આખા બધા શ્વાસોશ્વાસ જે વપરાયા એ કલ્યાણ યજ્ઞમાં. અને પાછું એકલું આત્મા નહીં, દાદાએ કહ્યું કે અમારા દેહમાં એક એક પરમાણુમાં એટલું તપોબળ છે, એટલું યોગ બળ છે, એટલું બધું સિદ્ધિ લઈને આવ્યા છે કે તમારે જે કરવું હશે તે થશે. શું કહ્યું? જે કરવું હશે તે થશે. હવે પોતાના માટેની વાત તો બધા પોતપોતે સમજી લેજો. અત્યારે જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, કદાચ મને જે સૂઝે છે કે આટલે પહોંચ્યું છે આ દાદાનો યજ્ઞ, અને આપણા બધાના શ્વાસો ચાલે છે ત્યાં સુધી બધાની શું ભાવના છે? મારી તો એવી ભાવના છે કે આ 10 लाख વર્ષે જે બધું, हिंदी में बोलूं? अच्छा, कितने लोग गुजराती नहीं समझ सकते? हाथ खड़ा करिए. ओके, तो मैं हिंदी में भी बोलूंगा और हिंदी और गुजराती दोनों में बोलूंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे कि हिंदी भी नहीं समझ पाएंगे. ठीक है? कितने लोग हिंदी ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं? हाथ उठाइए. हिंदी कोने? हिंदी में बोले तो हाथ ऊंचा कैसे किया? करो 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 भाई, बोल सुधारो છો. નહીં, હિન્દી કેટલાને સારું નથી સમજાતું? હાથ ઊંચા કરો. તમે હિન્દીમાં બોલ્યા ને એ લોકોએ હાથ ઊંચો કર્યો. અરે કહું છું ભાઈ, સુધારું છું. બોલ. તમારી ભૂલ નથી, તમે હિન્દીમાં બોલ્યા એ લોકોએ હાથ ઊંચો. હિન્દી સમજ में नहीं आती એમ કરીને. चलो जाने दो, अपना यही फ्री पीरियड है. દાદા અમારી જોડે બહુ ગમ્મત કરતા, પણ ગમ્મતમાં એકાદ વાક્ય એવું આપી દેતા કે આખી જિંદગીનું બાથું ચાલે અમને. તો આપણે બધાએ ભાવના કરીએ છીએ. હવે ઘણા બધાએ પોતપોતાની રીતે બધા, હવે જગત કલ્યાણ એમ તો દાદાએ આપણને આપ્યું, પણ જગત કલ્યાણ એટલે શું, કેવી રીતે, શું થવાનું, કેવી રીતે, તો દરેકની પોતાની ડિઝાઇન હોઈ શકે છે. હવે કેલનપુરમાં બધાને ઘણા વર્ષોથી ભાવના હતી કે આ બહુ ધમધમતું તીર્થ થાય, અહીં રેસ્ટોરન્ટ થઈ જાય, આવતા જતા કે તે થવા માંડ્યું છે. પણ એ જે કંઈ ભાવનાઓ છે આપણી, એ સબ ડિટેલ્સ તો પછી આવે છે. शांति काका, मेन શું છે? हिंदी हिंदी यही गलती हो जाती है ना, इसीलिए इसको फ्री पीरियड बोला. तो मेन हमारा मेन आशय क्या है? बस इसी में आनंद है, यही चाहिए मेरे को कि भाई सब एक एक बोला ना, दादा भगवान પાસે जादू अभेद एवा सहु एक राग થઈ ગાવે. पर उसका हिंदी बाद में करूंगा ना, वो तो गुजराती में गाया है उन्होंने. तो दादा भगवान के पास ऐसा जादू है कि सब एक राग होके गा सकते, बोल सकते, बीच में रोक सकते, टोक सकते, सब कुछ कर सकते. उसी का नाम दादा का प्रेम का दरबार. तो ये जो बात हुई कि दादा का विज्ञान हमें तो जितना मिला उतना मिला, और हमारी तो भावना है कि हम संपूर्णता की ओर जाएं, मगर जगत के लिए आज कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से. तो हमारी ये भावना है कि कविराज ने जो लिखा ना कि भाई नगर गली और शेरी चोटे गुंजन सबको मिले, ये कवि की कर जो कव्वाली उसने लिखा सबको मिले आपत स्वजन.
अभी दादा फिजिकल रूप से नहीं है, मगर जो भी उनका संदेश लेके जाता है, जो भी कुछ करता है, तो सामने वाले को लगे कि हमें सर्व प्रकार से विश्वास करने योग्य आप्त स्वजन मिले हैं, तब जाके काम होगा ना। तो ये भावना हर प्रकार से हम सब लोग कर रहे हैं, और आप अपने अपने हिसाब से यहाँ भावना करना कि ताकि दादा का जो अंतराशय है कि ये विज्ञान उनका शब्द शब्द वाक्य वाक्य कितना अनुभव में से निकला है, और यदि वो बोलते हैं कि 18,000 साल तक ये लोगों को ये काम में लगेगा, तो उसका क्या अर्थ हो सकता है। मुझे तो कई बार मेरी खुद के ऊपर अफसोस हो रहा है कि जितना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, मेरे से जितना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। क्यों? तो कि आज यदि 5,000 साल के बाद एक गीता लेके लोग इतना अपनी दृष्टि से उसका उपयोग कर रहे हैं, तो मेरे पास तो दादाजी का मर्म इतना सारा है, मैं क्यों नहीं ये कर पाऊँ कि गीता पढ़ने वाले को भी उसका ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन मर्म और इसकी यात्रा मिले। आज सबके पास अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड बुक भी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैनों का एक स्टैंडर्ड बुक नहीं था, तो विनोबा भावे ने उस समय में जैनों के सभी आचार्यों फिरकों के आचार्य से विनंती की कि आप सब लोग मिलजुल के एक ऐसा सरल पुस्तक बनाओ जो सर्वमान्य हो और जिसमें महावीर के सिद्धांत समाविष्ट हो। और एक समण सुत्तम करके बहुत अच्छा पुस्तक निकला, मुझे बहुत प्रिय है, कि आज दृष्टि मिलने के बाद पता चलता है कि वही चीज़ मूल सिद्धांत रूप से उसमें रखी गई है। तो क्या भावना करते करते हम ये कर सकते हैं कि दादा का विज्ञान ये लोगों को तो पहुँचे जितना मिले, मगर 18,000 साल तक उजाला ऐसा सुग्रथित रूप से निकला रहे कि लोगों को जब चाहे उसका उपयोग हो पाए, उपयोग कर पाए। तो इस बारे में मैं हरीश भाई को बोलता हूँ 1-2 मिनट कुछ भावना प्रदर्शित करें। किसी और को करना है तो हाथ उठाइए, फिर 5 मिनट हम आंख बंद करके भी ये कल्याण यज्ञ की भावना करेंगे। फिर लक्ष्मी को और मेरे सेवा के यज्ञों को भी जोड़ेंगे हम, मेरा योगदान क्या हो सकता है उसमें। અત્યારે બીજા કોઈને આપો પછી લો। नहीं, वो दूसरे लोग तैयार हो, हाथ उठाए, मैं सबको इनवाइट कर ही दिया है। वी डोंट वांट टू लूज टाइम। एक बात मेरी पक्की है कि T20 में समय नहीं गंवा सकते, एक भी डॉट बॉल नहीं जा सकता है। ભાવના તો બધું મને ખબર પડે નહીં, બધાને દાદા મળ્યા છે, પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ પણ દાદા હાજર જ છે। તો એક એક્ઝામ્પલ યાદ આવે કે એકલવ્ય એને દ્રોણાચાર્ય પ્રત્યક્ષ મળ્યા નહોતા, ફક્ત એને ખબર પડી, તેણે ફક્ત એનું સ્ટેચ્યુ રાખીને આટલું બધું કર્યું। દ્રોણાચાર્ય જ્યારે પહેલી વખત એમને મળ્યા તો એમણે ગુરુ દક્ષિણા તરીકે એમનો અંગૂઠો માગ્યો, જે આખી એની સાધના હતી એ જ એમણે માગી લીધી, અને કોઈ પણ જાતના વિચાર કર્યા વગર એકલવ્યએ એમના ગુરુને એ દક્ષિણા આપી દીધી। તો આપણી પાસે તો ગુરુ નથી પણ જ્ઞાની છે, તો જ્ઞાનીને શું દક્ષિણા આપવી એ બધા જ બહુ સારી રીતે જાણે છે। કારણ કે જેને દાદા મળ્યા છે, મળતા પહેલાં કે મળ્યા પછી, દરેકને પોતાની પ્રતિકૂળતામાં દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન અને દાદાનો અહો બહુ થયું છે। તો બે રીતે ભાવના થાય, એક તો પોતે પોતાની પ્રકૃતિ જે લઈને આવ્યા છે એ અત્યારની હાજર યજ્ઞમાં કેવી રીતે સંઘમાં કે સેન્ટરમાં તમે મદદરૂપ થાઓ, એ મોટા મોટી ભાવના દ્રવ્ય તરીકે, અને તમારું જે દર્શન ખુલ્યું હોય તો દાદાના જગત કલ્યાણમાં એ તમારો ભાવના મૂકી શકો છો, એવું મને લાગે છે। બીજું અત્યારે કાંઈ સૂચતું નથી। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। जगत कल्याण ने काजे अमे धरियो छे दादा भेग। जगत कल्याण ने काजे अमे धरियो छे दादा भेग। रयो शुद्ध भाव मां संकल्प निकाली छे हमारो देव। रयो शुद्ध भाव मां संकल्प निकाली छे हमारो देव।
મહાપુણ્યથી મિલે છે મહાપુણ્યથી મિલે છે ઊંચું કુળ હિંદ ને જ્ઞાની ઊંચું કુળ હિંદ ને જ્ઞાની જીવન છે મોક્ષ મેળવવા જીવન છે મોક્ષ મેળવવા બીજું બાકી બધું ફાની બીજું બાકી બધું ફાની तो ये थोड़ी सी बात हमने की कि दादा के कल्याण यज्ञ में हमारी क्या भावना पहले तो हो सकती है, हमारी दृष्टि जितनी विशालता पकड़ेगी तो ये निमित्त उस हिसाब से हो सकेगा। थोड़ा बहुत भावना का फल आएगा निमित्त को काम करने में, या उसके संयोग या उसकी जहाँ जैसे भी जितनी उसकी व्यवस्थित में वो काम में लगेगा। अभी साथ ही साथ में जब ये बात करते हैं तब दूसरी भी एक बात आती है कि भाई दो तरीके से इन्होंने तो बहुत बड़ा संदेश दे दिया, मगर मैं जब नया नया आया था 77-78 की बात कर रहा हूँ, दादाजी से मिला और उस समय मेरी सोच में आता था कि ये आप्तवाणी जो मुझे पढ़ने को मिली है पहला भाग, इतना आनंद हो रहा है, तो किसने कितनी मेहनत इसके पीछे कितना सेवा का बल लगा होगा। किसी ने तैयार किया है, किसी ने छपवाई है, छपवाने के पैसे किसी ने दान दिए है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई अरेंज कर रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है। जब सत्संग में एक टाइम मुझे बैठने को मिलता था तब मुझे ख्याल आता था कि किसी की जगह है, कोई शतरंजी दे रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तब जाके मैं वो प्राप्त कर सकता हूँ। प्रसादी तो आगे की बात है, बिना प्रसादी भी यहाँ बैठने को मिला है तो कितने लोगों की सेवा उसमें जाती होगी। क्या कभी मैंने ये महसूस किया कि जब मैं इतनी किसी की सेवा से ये पा रहा हूँ तो मेरा फर्ज या ह्यूमैनिटी क्या बनती है? क्या सब कुछ लेके बैठ जाऊँ, बात करके निकल जाऊँ? कई लोग हमारे सत्संग में ज्ञान बहुत उत्तम है, मगर कई लोग, मैं तो सबको मिलता हूँ, न्यूट्रल लोगों को, बाहर के लोगों को भी मिलता हूँ, सबको मिलता हूँ और अंदर अंदर भी काफ़ी बात होती है, तो बोलते हैं कि बाहर जितनी सेवा की सिंसियरिटी है ना, आपके संग में वो सेवा की सिंसियरिटी और डिसिप्लिन नहीं दिखती है। पता नहीं कितने लोग मेरे से सम्मत है या नहीं है। पंकज भाई तो सम्मत है बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि, तो बात ये नहीं है, बात ये है कि दादाजी बोलते हैं कि विनय का अर्थ क्या है। तो बोले मुझे जो प्राप्त हुआ उसमें यदि इतने लोगों का योगदान है, ज्ञानी का तो कोई हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, उनके योगदान को तो 1% भी रिपे उन्होंने किया बोला तो नहीं कर सकेंगे, मगर दूसरों का तो मुझे मेरी फाइल एक को तो बोलना चाहिए ना कि भाई तुझे औरों के योगदान से इतना मिल रहा है तो तेरा क्या योगदान हो सकता है या होया है। किसी के बोलने पर मिलेगा कि तू खुद जाके ढूंढेगा। और उसमें सीक्रेट तो ये बात है नरेश भाई जी कि क्या मैं किसी की सेवा करता हूँ, किसी के लिए कुछ करता हूँ? नहीं, वो तो दादाजी ने अनुभव करवा दिया कि पहला अपने। तो मुझे तो ये आप्त सूत्र उस समय में भी ध्यान में आया था कि दादाजी का एक आप्त सूत्र है कि जिसको सेवक पद प्राप्त, सेव्य पद प्राप्त होता है, वो सेवक पद भली भांति निभाने के परिणाम स्वरूप वो सेव्य पद में आता है। तो दादाजी खुद बोलते थे कि हम तो पूरे जगत के सेवक हैं। अभी सेवा का तो बहुत बड़ा मीनिंग है, अभी के लाइट पीरियड में मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मगर इतनी ही बात है कि मैं मेरी फाइल को क्या बोल सकता हूँ कि मेरे मन वाणी का या मेरे श्वास, मेरे पास जो कुछ भी है, तो यदि कुछ काम में आ जाए यहाँ या तो कोई कहीं पर भी आ जाए तो शायद। अच्छा, हमारे महेशानंद जी को दादाजी ने बोला था, महेशानंद जी है नहीं है, दादाजी ने उनको बोला था कि पूर्णाहुति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा? या तो 5 आज्ञा के पालन का या तो महात्माओं की सेवा का। तो महेशानंद जी ने दूसरा पकड़ लिया था कि 5 आज्ञा पालना हमारे इतने बस की बात नहीं है, पर ये हमारे बस में है और बहुत लोगों को बहुत तरीके से हेल्प भी। तो मैंने देखा कि दादाजी ने ये भी स्पष्टता की थी कि हमारी सेवा करने वाले तो बहुत दौड़ते हैं, हम मारामारी करते थे, एक पाया मेरा एक पाया मेरा। वो बोले मेरे पहला पकड़ा था,
मगर महात्माओं की सेवा मेरी सेवा से भी अधिक है, क्योंकि महात्माओं को जल्दी मिलेंगे नहीं। अभी यहाँ महात्माओं का अर्थ विशालता हो जाती है मेरे लिए कि भाई ये नहीं दादा को प्राप्त हुए, बाकी के जगत के जो लोगों को प्राप्ति करवानी है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनका दिल कैसे जीत सकते हैं, उनको कैसे लगे कि ये यहाँ कुछ अलग ही हैं। और जो नए नए आए हैं वो देख रहे हैं ना, अनुभव भी कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी 1 2 3 चीज़ मुझे लगा कि आउट ऑफ बॉक्स हमारी दृष्टि की विशालता कुछ हो और कर सके हम, ताकि जहाँ तक ये थोड़ा, और हम हैं जो दादाजी को थोड़े बहुत मिले हैं, जो दादाजी के वातावरण में है, तो उनकी जिम्मेदारी और बनती है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ तक कुछ उजाला यथार्थ रूप में जाएगा, फिर तो वो व्यवहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें से मर्म धीरे 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 धीरे। तो दादाजी ने बोला था कि ये बीच वाला 400-500 साल का समय एक अच्छा समय आने वाला है, बहुत अच्छा समय, और ऐसे तो 18,000 वर्ष तक चलेगा। तो महात्मा लोगों को कुछ दादा को याद करके जो भी, हाँ बोलिए, प्लीज़ प्लीज़, एवरीबडी इज अलाउड, प्लीज़ रेज द हैंड। अभी कुछ ही समय पहले डॉक्टर गांधी साहब आए, आप्तपुत्रों का परिचय हुआ, उनको आप्तपुत्रों से सत्संग भी मिला, दादा भगवान का विज्ञान जानने मिला। हम उन्हीं से उनका भाव सुनेंगे। पधारिए डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद। बिराजिए आप। चूंकि मुझे बोलने का अभ्यास नहीं है, जो बात मैं कहूँगा संक्षेप में कहूँगा। और आज सत्संग में ये बात आई भी थी कि अगर हम कोई चीज़ मुफ्त की लेते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, उसका महत्व नहीं समझते हम। और जिस चीज़ को हम खर्च करके लेते हैं उसका बहुत महत्व समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ज्ञान तो बहुत बड़ी महत्व की चीज़ है, उसके लिए हम कुछ खर्च नहीं करें तो हमें ज्ञान मिल नहीं पाएगा, सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी से, इस पर विचार करें। ये मेरे विचार हैं, आप अपने विचार रखें, सोचें इस बात पर कि हमें क्या करना चाहिए। हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो हमें बदले में कुछ देना भी है। जैसा मैंने निवेदन किया, बिना मेहनत की कमाई बुद्धि भ्रष्ट करती है, ये मेरी अपनी मान्यता है। बस मैंने जैसा निवेदन किया कि मुझे ज़्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है, मैंने अपनी बात संक्षेप में रखी। आप सब लोग विचार करें कि हम जितना लाभ ले रहे हैं हमें वो लाभ देना भी है, कैसे दें कैसे नहीं दें, ये आपके आपकी अपनी अपनी सोच की बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। तो 5 मिनट या 4 मिनट आंख बंद करके दादाजी से अपनी जो जो भावना है इस क्षेत्र में हम प्रदर्शित कर सकते। एक गम्मत जैसी बात भी कर लेता हूँ साथ में। हमारी मम्मी जी क्या बोलती है पता है, ये सब आप्त पुत्र दादाजी के आशय अनुसार तैयार हो जाए ने सीधे हो जाए, इसके लिए मैं रुकी हुई हूँ, बोलते क्या बोलते, उसकी वो भावना है। और जब लोग जाते हैं ना बोलते भी हैं, हंसते हंसते बोलते हैं, खिलाते भी हैं, मगर ये भी बोलती है। तो हर एक का अपना अपना दिल है, हर एक का अपना अपना एक दृष्टि है। तो एक दृष्टि की विशालता से हम दादा से प्रार्थना करके ये क्षेत्र में जब आए हैं, तब जो दादाजी का विजन हमने खूब सुना है कि जो थोड़ी बहुत बात की, उसमें हमारी क्या भावना हो सकती है, हमारा क्या योगदान हो सकता है और हमारे से क्या सेवा हो सकती है। आंख बंद करके आप दादाजी के साथ 5 मिनट भावना करिए, फिर आगे चलेंगे। जय सच्चिदानंद। सेवा की जब बात कर, हाँ बोलिए, किसी को बोलना है? जरूर जरूर। ये आत्मा अभिनंदन का क्या मतलब होता है? ऐसा वो पद में आया था और दादा भगवान ने भी बताया था, श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी बताया था कि जिनसे हमें यह भान हुआ, यह ज्ञान मिला, उनको हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो जगत की विनाशी चीज़ है। तो बोले कि आत्मा अभिनंदन। तो ये आत्मा अभिनंदन क्या है?
जो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि वो राजचंद्र के पद में है ना, सुप्रभु तुझे चरण कने धरू आत्मा थी सौहीन। ये मेरे पास आत्मा से ऊंचा कोई चीज ही नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं? तो बोले मेरे हृदय के सभी भावों से, मनवाणी का है तो ठीक है, हृदय के भावों से, और जो भी मेरे पास छोटी दृष्टि मिली, आप आपका पिता है तो मैं आपका पुत्र हूँ, ज्ञात पुत्र जिसे बोलते हैं ना चरण विधि में, जो भी मेरे पास है हृदय के शुद्ध भावों से आपके चरणों में हूँ। उसका मतलब है कि आपके हर एक शब्द, आपकी हर एक संज्ञा, आपका प्रत्येक रिलेटिव या रियल जो भी दिशा सूचन है, मेरे लिए न तो केवल शिरोमान्य है, बट वही उसी में मैं रहूं, उसी में मैं डिज़ोल्व हो जाऊं, वो सही अर्थ में मेरे ख्याल से आत्म अभिनंदन है, क्योंकि तो ही वो होता है। और क्रम मार्ग में आप देखोगे तो उसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है कि जिनसे मिलता है इतने भी नहीं में रहते, इतने उनका अस्तित्व ही डिज़ोल्व है, उनका अस्तित्व ही डिज़ोल्व है। नहीं राजचंद्र के बारे में आया कि भाई आए, बोले क्यों आए, चले जाओ, तो चले गए। एक भी वो जो बोले वो उनके लिए सब कुछ है। तो ये वो विनय का जो मार्ग है और विनय के साथ हृदय की समर्पणता। उन्होंने बोला ना कि गुरु को क्या दे देने, गुरु तो ऐसे है भी नहीं, बट मुझे ऐसा समझ में आता है। और किसी को कुछ बोलना है तो जरूर बोल सकते हैं इसमें। गुजराती यानी वो ये अभिनंदन क्या होता है? अभिनंदन का अर्थ तो सादी भाषा में तो हम समझते हैं, मगर अभिनंदन का अर्थ हम कॉन्ग्रेचुलेशन या तो ग्रेटिट्यूड या तो किसको जो हम प्रशंसा करते हैं। कमलेश भाई को कुछ बोलना है आत्म अभिनंदन के लिए? आत्म अभिनंदन जेणे आप्યું ભાન નહીં જ તેને આત્મ અભિનંદન। हाँ પણ એ તો બહુ ગ્રોસ अर्थ है। सैल्यूट तो अभिनंदन तो बहुत ग्रॉस मीनिंग है, पर सूक्ष्म में मुझे ये ख्याल आया। हाँ हाँ, तो मेरे आत्मा से मैंने मेरा जो संपूर्ण अस्तित्व सब कुछ है उससे मैं आपको अभिनंदन मैंने आपके सुचरणों में समर्पित हूँ, इस प्रकार से। तो आगे चले थोड़ा। तो सेवा की जो बात थोड़ी सी तो करी हमने, थोड़ी सी आगे ले जाए हम उसको। तो 1995 शायद हम लंदन में थे और वहाँ पर निजडन का जो स्वामीनारायण टेम्पल था उसका इनॉग्रेशन का वो चल रहा था। तो वहाँ पर पहले देखने को मिला कि आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स जो भी थे, महीने महीने की छुट्टी लेके जो जॉब उनको दिया गया है, कोई पार्किंग की व्यवस्था में है, कोई लोगों को जूते संभालने की व्यवस्था में है, कोई दूसरी व्यवस्था में है, तो वहाँ सेवा ही उनका धर्म, सिंसियरिटी माना गया था। और आप्तपुत्रों से भी दादाजी ने ये काम करवाया है, कहीं कहीं पर जूते संभालने के लिए भी बिठाया है आप्तपुत्रों को, और उसके बदले में बहुत आशीर्वाद भी मिला है। तो हम क्रम मार्ग में नहीं है, अहंकार नहीं है हमारा। मैं मान्य करता हूँ कि लोगों का अनुकरण की बात नहीं है, मगर एक साथ में सिद्धांत है कि पुद्गल जैसा देखता है उसकी प्रशंसा करता है तो उसमें गुण आता है, वो सीखता है, वो भी तो एक हकीकत है। तो चलो इतनी बात हुई, अभी दूसरे सेक्शन में जाएं हम। किसी को कुछ बोलना है ये सेक्शन में? नहीं तो दूसरे सेक्शन में जाएं हम। नए कोई आएंगे? अच्छा, वो भक्ति बहन किधर गई? भोजन करवाने के लिए आई थी, है कि नहीं इधर? बम्बई की यंग महात्मा थी, नहीं है? नहीं है, ठीक है, चलो जाने दो, जब देखेंगे तब। तो दूसरी बात है कि ये थोड़ी बात हुई, फिर आती है कि लक्ष्मी के व्यवहार की जो बात दादाजी से देखी गई वो बोलता हूँ मैं। शुद्धिकरण और वो तो सब अपने अपने समझना। दादाजी का जो पूरा जीवन व्यवहार चला, तो ये जो पद बना ना, वो हमारे सामने ही बोले थे दादाजी। वो भाईजी दरोगा के पोड़ में 4-5 थे हम, सुबह में चाय दादाजी ने थोड़ी ली और दादाजी ने बोला कि कुदरत ने तो हमको पूरा दिया था, हमने थोड़ा ही हमारे लिए इस्तेमाल किया, बाकी का औरों को
બાંટ દિયા, ભિલાડ્યો, ઇનફેક્ટ કરેક્ટ શબ્દ તો ભિલાડ્યું એવું હતું. तो ये चीज़ देखी गई कि वितराग पुरुष जो है, पुण्य तो बहुत ऊंचा प्रकार का होता है, मगर एक तो खुद के लिए बहुत मिनिमम यूज़ करते हैं, पानी भी मिनिमम यूज़ करते हैं, फैसिलिटी भी मिनिमम यूज़ करते हैं. जैनों में उसको उपयोग जैना बोला गया है. भले आपको प्राप्ति खूब है, मगर आप खुद के माइंड बॉडी स्पीच का मेंटेनेंस के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं. और बाकी जो बचा, तो दादाजी ने जब से ज्ञान हुआ तब से खुद के पैसे से लोगों को यात्रा करवाई, पुस्तक छपवाई, दूसरी चीज़ें एम पटेल ने अपनी लक्ष्मी कल्याण योग में इस्तेमाल की. तो उनका पूरा जीवन उदाहरण स्वरूप रहा. फिर उन्होंने साइंस भी, मैं कल ही पढ़ रहा था, देखा मैंने भी, मेरे पास ये लोगों ने मुझे ये रोल दे दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो दादाजी ने बोला, बहुत सारी चीज़ बताई है कि लक्ष्मी आना वो तो पुण्य का फल है जरूर, मगर वो कैसे रास्ते पर जाती है उससे भी बड़ा पुण्य है. और यदि आपका पुण्य उतना ऊंचा और समझ उतनी ऊंची होगी तो लक्ष्मी योग्य रास्ते से व्यय होगी, नहीं तो गटर में जाएगी. ऐसा बोला. क्या बोला? तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जागृति, और भी जागृति की बात हुई कि आते समय तो मैं मेरी नीति रखूं, किसी को तकलीफ ना हो, सब देखूं, मगर जाने के रास्ते. तो हमारे कमलेश आनंद जी को बोला था, उनको याद है तो बोले. कमलेश आनंद जी नहीं सुनते नहीं ना. दादाजी ने आपको बोला था ना, एक बारी में से पवन जाता है तो दूसरी बारी में से आता है. हाँ हाँ, लक्ष्मी का बात. हाँ, आपके साथ बात किया था ना कि दोनों बारी थी, उसकी बात करो 1 मिनट में. माइक दीजिए. एक बार दादाजी दोपहर को आराम कर रहे थे भाई का दादालय में. तो उनकी એમની પથારી પલંગ વચ્ચે રાખેલો હતો. હું ગુજરાતી બોલીશ. હા, વાંધો નહીં, ગુજરાતી બોલો. પલંગ વચ્ચે રાખ્યો હતો અને લાઇટ ગઈ એટલે આગળ 2 બારી અને બારણું છે દાદાલયમાં, અને પાછળના ભાગમાં બીજી રૂમ છે, ત્યાં બારણું છે. એટલે દાદા ભગવાને મને કહ્યું કે આ દાદર બાજુ બારી છે, બારી ખોલ. એમાં બારી ખોલે એટલે પવન આવ્યો. દાદા ભગવાને મને પૂછ્યું કે પવન ક્યાંથી આવ્યો? એટલે મેં કીધું દાદાજી આ બારીમાંથી. એટલે દાદા ભગવાન કહે છે ના, આ પાછલા દરવાજો ખુલ્લો છે ત્યાંથી પવન ગયો એટલે અહીંથી પવન આવ્યો. લક્ષ્મીજીનું પણ આવું જ છે. શું કીધું? લક્ષ્મીજીનું પણ આવું જ છે. એટલે આટલું જ બોલ્યા. એટલે કે આશય શું કે લક્ષ્મીજી જવાનો દરવાજો ખુલ્લો હોય એટલે સારા રસ્તે વપરાય તો આવે. જો આપણે પાછલો બારણો બંધ રાખીએ અને પવન હોય ને આગલો બારણો ખુલ્લો રાખીએ તો પણ આ પવન આવતો નથી. वेरी गुड. तो आज बात काले हूँ, यही चीज़ मैं कल आपतावाणी 7 खोल के थोड़ा बैठा था, 2-4 पन्ना पढ़ा, क्योंकि वो उसमें लक्ष्मी की काफ़ी सारी बात है. तो 2 बात मेरे भी पढ़ने में आई दादाजी की. ये मैं बता रहा हूँ कि दादाजी ने खुद के कई अवतारों के अनुभव में से ये सब अपने को दिया है, अकेला आत्मा नहीं दिया. व्यवहार के सब कोने में काफ़ी बात दी है दादाजी ने, जिसके पीछे उनका अनुभव यदि हम जांच करें कि क्या कौन से लेवल में से बात आ रही है. तो दादाजी ने 2 बात करी थी. एक कि लक्ष्मी का आना वो दान के प्रवाह के पैरेलल आती है, जितना दो उससे कहीं गुना ज़्यादा आती है. और एक जगह पे दादाजी ने ये भी बोला था कि ये वितराग मार्ग मैंने पैसा खर्च करने की सबसे शुद्ध जगह, और वो भी रियल ज्ञानदान के से जुड़ी हुई. तो यहाँ तो व्यय करने का पहले तो तक ही नहीं मिलता है, और यदि मिलता है तो फिर बाकी का वो ही संभालते हैं. और ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी 1-2 एग्जाम्पल्स अभी हम लाइव लेंगे कि जिन्होंने नक्की किया कुछ, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, इंक्लूडिंग आवर सेल्स, मगर जब नक्की किया, जब हो गया, तब ऐसे ऐसे करके हो गया, और फिर वितराग ने बाकी का कैसे संभाला. तो एक ये चीज़ उन्होंने बोली. भले हम करें ना करें, यहाँ किसी को मांगने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये साइंस उनका जो खुला किया हुआ है. दूसरा उन्होंने बताया कि हेतु या इंटेंट देखा जाता है. क्या देखा जाता है? लक्ष्मी मेन इंटेंट नहीं है, वो बाकी प्रोडक्ट है.
और उसमें तो डॉक्टर का ही पैराग्राफ था, तो मेरे को तो डायरेक्टली टचिंग होता था कि यदि आपका हेतु किसी को मदद करने का है, किसी को सुख पहुंचाने का है, किसी को कुछ मिले ऐसा है, तो बाय प्रोडक्ट में लक्ष्मी आती रहेगी। यदि लक्ष्मी को मेन प्रोडक्ट बना देंगे तो आपका हेतु मिस आउट हो जाएगा। और ये दूसरी चीज़ बताई। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि पूरे जीवन में मैं ये देख रहा हूँ कि देने वाले कितने एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ मुझे एक एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स है, पर एक एग्जाम्पल याद आया कि हमारे जैनों में एक दीपचंद गार्डी करके बहुत बड़ा नाम था। उनकी कहानी ऐसी है कि उनके पास कुछ नहीं था, तो 10 मील चल के कहीं पर 10-15 मील चल के गए थे। वो भी बम्बई के महात्मा ने मुझे बताया, क्योंकि उनके सगे वाले में होते हैं। और जाके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ऐसी शक्ति और संजोग दे कि मैं रोज़ उस जमाने में 10,000 या जो भी मांगा इतना दान कर पाऊँ। फिर पूरा जीवन डेली लैक्स ऑफ रुपीस दान किया और इतना सामने से आया कि खूटा नहीं। तो दादाजी ये बोलना चाहते थे कि जिनको देना आता है तो कुदरत इतना देती है। लक्ष्मी तो उसका नाम कि देने से भी कम न हो, बोले उसका नाम सही अर्थ में लक्ष्मी। भले हम कर पाए ना कर पाए, मगर ये समझ में आता है तो भाव तो जरूर से खड़ा होता है, और भाव खड़ा होगा तो वितराग कहीं ना कहीं वो वितराग विज्ञान में आगे जाके काम करेगा। ये भी जरूरी नहीं है। दादाजी तो बोलते थे कि हमें लक्ष्मी चाहिए नहीं, उन्होंने तो रिवर्स भी रखा था। जो तकलीफ में होता था ना, सामने जाके देते भी थे। अभी 1-2 एग्जाम्पल लेते। हरीश भाई, आपका वो पुण्यतिथि वाला एग्जाम्पल बोलेंगे आप प्लीज। लक्ष्मी गम्मे ते धंधामा, लक्ष्मी गम्मे ते धंधामा, मेळवनारो पुण्यो रे, मेळवनारो पुण्यो रे, पुण्योत्पार्जक सत्संग मार्गे, पुण्योत्पार्जक सत्संग मार्गे, खर्ची धनने धोजो रे, खर्ची धनने दोजो रे, आ दुनियामा सर्वे जीवने, आ दुनियाમાં સર્વે જીવને सुख ने शांति हो जो रे, સુખ ને શાંતિ હોજો રે. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન 83માં બોમ્બે મળ્યા, બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ બોમ્બે. 94માં હું વડોદરા શિફ્ટ થયો. તો ત્યારે જોવાની બિગિનિંગ સ્ટ્રગલિંગ ડેઝ બધા હતા. તો 94 જૂનમાં આવ્યો અહીંયા. જુલાઈમાં ગુરુ પૂર્ણિમામાં સુરત મંદિરે ગયા. તો ત્યારે એક ભાવ થયો કે એક મોટો પ્રસંગ આપણે દાદા ભગવાનનો કરીએ. તો મહેશ આનંદજી ત્યારે બધું નોટ ડાઉન કરતા હતા. તો મેં કીધું મારે પુણ્યતિથિ ઉજવવી છે. તો એ કે 95-96 છે તારે જોતી હોય તો. ના, એટલું તો મારું બજેટ અત્યારે બીજા જ વર્ષે ઉજવવાનું નથી, મને 98ની આપી દો. તો કે સારું. તો એટલું ખબર પડી કે 94ની જે પુણ્યતિથિ ઉજવાયેલી એનો 65,000-70,000 રૂપિયા ખર્ચ આવેલો. બધું 98ની ઉજવીશું તો 1.25 લાખની આસપાસ આપણે ચાલવાનું. એટ એ ટાઈમ એટલા પૈસા નીકળે એમ નહોતા. સુરત મંદિરે લખાવ્યું, ત્યાં દાદાને ભાવ કર્યો, અને પછી વડોદરા આવીને એક કોઓપરેટિવ બેંકમાં, હજી તો હું બોમ્બેથી શિફ્ટ થયેલો, બિઝનેસ સેટલ નહોતો થયો, અહીંયા ધીરે ધીરે શરૂઆત હતી. પણ મારું પ્રીતિનું અને સન ઋષભના નામનું 1,000-1,000નું મેં આરડી કર્યું, દાદાને સોંપીને. 3 વર્ષ આરડી થયું. બધું ભેગું મળીને 1,11,000 આવ્યા. અને એમાં એક આશ્ચર્યની વાત મારે બોલાય નહીં, ત્યારે ઋષભ તો 3-4 વર્ષનો હતો. આપતા પુત્રોનો બહુ જ ઘરે અવરોજ અવરોજ ચાલ્યા કરતો હતો. તો બોમ્બેથી શિફ્ટ થયેલા, ઘરમાં બહુ બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ હતા. તો જતા આવતા ઋષભને કંઈ ને કંઈ આપ્યા કરતા હતા. તો 98માં એનું પીગી બેંક ખોલી તો 6,000 રૂપિયા ભેગા થયેલા. તો ભરત આનંદજીએ ઋષભની બહુ મસ્તી કરી. ત્યારે 8-9 વર્ષનો હતો કે આપણે તારી સાયકલ લઈ આ થઈએ, કે ના કશું જ નહીં, મારે દાદામાં વાપરવા છે. એટલે મારા ઓલા આરડીના ભેગા થયેલા 1,11 અને આ 7-8 હજાર, 1,20 ત્યાં, અને કુદરતી 1.25 લાખમાં દાદાની પુણ્યતિથિ ઉજવાઈ.
એટલે ભાવ મૂકીએ છીએ, દાદા યારી આપે છે અને બધું પરિપૂર્ણ પણ થાય છે. તો આવી રીતના લક્ષ્મીનો ઉપયોગ આપણે ભાવનાપૂર્વક સ્ટ્રેટેજી. અને આગળની વાતમાં હું એટલી જ કહીશ, જે એકલવ્યની વાત કરી, એમના તો ગુરુએ દક્ષિણા માગી. આ તો આપણા જ્ઞાની છે, કશું માગ્યું જ નથી, બધું આપી દીધું છે. એટલે આપણી દાદા માટેની કે દાદા પ્રત્યેની જવાબદારી અનેક ગણી થાય છે. એ મહાત્માઓ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હું સુધારો કરું, જવાબદારી નથી, પણ આ સ્માર્ટ ટ્રિક્સ જાણશો ને, સ્માર્ટ ટ્રિક્સ એટલે કે સ્માર્ટ એટલે આ વસ્તુ સમજશો તો ઓછી મહેનતે ખૂબ લાભ થશે. હવે બીજા 2-4 દાખલા આપો આની જોડે જ. એકવાર નવા વર્ષને દિવસે સત્સંગ એપાર્ટમેન્ટમાં દાદા ભગવાન સાથે અમે લોકો બેઠેલા હતા અને મંજુસરના એક ખુશાલભાઈ મહાત્મા, ઘણા ખરાને આમાંથી ખબર છે, આવ્યા. 1000 રૂપિયા દાદાજીના ચરણોમાં ધર્યા કે દાદાજી આ તમારી આપતાવાણી છપાવવા માટે હું લઈ આવ્યો છું. દાદા તો બધું જ જાણે છે, વિધિ કરી સરસ આમ તેમ. પછી કે ખુશાલભાઈ આ તમે લઈ જાઓ, તમારા લાખ અમે જમા કરી દીધા છે, લાખ નહીં એના કરતાં વધારે. હવે જો હવે જોવા જેવું થાય છે. ખુશાલભાઈ કે હું લઈ જ ના જઉં પાછો, આના માટે જ મેં કાઢ્યા છે. કાઢ્યા છે કેવી રીતે? તો કે ઘંટી ચલાવે, ઘરમાં ફાટલો તૂટલો એક જ ખાટલો, આપણે જે તો બેસાડવા ક્યાંય પ્રશ્ન, રોજ 1-1 રૂપિયો જુદો મૂકે ઘંટીના વકરામાંથી. અને 1000 ભેગા થયા એટલે દાદા લઈને આવ્યો છું કે છે. શું લઈને આવ્યો છું? હવે તમે વિચાર કરો કે આની કિંમત, એટલે દાદા બોલે બી ખરા કે $1 મિલિયન હોય ને થોડાક આપે એના કરતાં આ બહુ મોટું. પછી એક પ્રસંગ બન્યો. હવે આ તો નાના માણસ, હરીશભાઈ જેવા મોટા સંઘપતિ હોય અને દાદાને લઈ જતા હોય તો દાદાનો ટાઈમ સાચવે ને, એટલે પેલા બિચારા બોલી ના શકે કે મારે ઘેર આવો દાદા, પણ દાદા બધું વાંચે. એકવાર એ રસ્તેથી પસાર થતા હતા અને અમારા તે વખતના સંઘપતિ બહુ કડક હતા, જરા ડિસિપ્લિનમાં. કડક એટલે ડિસિપ્લિનવાળા. એટલે પેલાથી બિચારાથી બોલાય નહીં, પણ એણે શું કર્યું, રસ્તાની ઉપર ઊભા રહી અને દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ધૂણી દખાયેલી એણે બોલ્યા કરે. દાદા પણ બહુ પાકા અને અંતર્યામી, એ જાણે કે હમણાં કહેવા જઈશ ને તો પેલા ફરી વળશે. અને દાદા કોઈનું પ્રમાણ દુભાઈને કશું કરતા નહોતા, એમની કળા અને દર્શન જો. ગાડી પસાર થાય છે એટલે જોડેવાળાને કહે છે કે આ અહીંયા કોણ અસીમ જય જયકારો બોલે છે, જુઓ તો ખરા. ઊભી રાખી, અરે ખુશાલભાઈ તમે, કોઈ બોલે તે પહેલાં દાદા બોલી પડે તમારે ઘેર ચા નહીં પીવડાવો કે છે. ઉભળ્યો, પેલા તો દોડા દોડ દૂધ લાયા, આમ લાય, પૂરી 50 મિનિટ દાદા એમને ત્યાં કાઢી. શું કર્યું? એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે ભગવાન ભાવ જુએ છે ખરા ને પૂરે છે ખરા. આપણે તો ખાલી એવિડન્સ પુરાવાનો હોય છે. હવે એવા તો બધા બહુ દાખલા છે. અમારા ભરતભાઈ ભટ્ટ, હવે ભરતભાઈ ભટ્ટ હવે તો બહુ છે, સેંકડો, હું તો 2-4 વાત કરું છું. જુઓ તો સાવ સાદા કપડાં, સાયકલ લઈને આવે, સ્કૂટરે નહીં વાપરનારા, પોતાના માટે કશું જ નહીં, પણ વાર તહેવારે થોડા પૈસા લઈને દાદા પાસે આવ્યા કરે. દાદા આપતાવણી છપાવવાના, ફલાણું કરવાનું, આ કરવાનું, તે કરવાનું. અમે બધા નમસ્કાર કરીએ કે અમારી પાસે વધારે છે પણ અમે આપી શકતા નથી. હું તો પહેલો જ છું લોભિયો મુવો કે જલ્દી આપતો નથી, પણ આલોચના છે એક જાતની, અને જાતને બી કહું છું. પૈસાનું હવે ત્રીજી વાત કરી દો. અમારા બધા સાથીઓ કહે છે કે અમારી પાસે લક્ષ્મી નથી, અમને શું કરવા વાત કરો છો? પણ લક્ષ્મી એક જ જાતની હોતી નથી. હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ વેલ્થ મને સેમિનારે શીખવાડ્યું તો કે હેલ્થ ઇઝ ફર્સ્ટ વેલ્થ. મારું મન, માઇન્ડ, બોડી, સ્પીચ ઇઝ માય ફર્સ્ટ વેલ્થ. મારી સમજ, મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, મારી શક્તિ, મારી ભાવના, મારું હાર્ટ, એ બધું જ મારી પાસે વેલ્થ છે. કંઈ ને કંઈ વેલ્થનો કંઈ ને કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકું છું. દાદા ભગવાન પોતાના ખિસ્સામાં રૂપિયો રાખતા નહોતા ને, તો પણ એમણે આખી દુનિયામાં કેટલી ખૈરાત કરી, બધી જાતની. એટલે આ તો વાત એટલી જ છે કે સમજ, અને સમજના આધારે જે ભાવના અને જે વિજ્ઞાન, એટલે આઈ થિંક વિતરાગો આવી જ રીતે જગત જીત્યા છે એવું મને લાગે છે. એ રિસોર્સિસથી જીત્યા નથી, લશ્કરોથી નથી જીત્યા, પણ વિજ્ઞાન, સમજણને એના આધારેનો જે ઉપયોગ કર્યો છે જીવનમાં એમણે કુદરત સાથે, એનાથી કદાચ લોકો જીત્યા. 1-2 લીટી લેવી હોય તો લોકોનો અનુભવ કેવો હોય તો કોઈ છેલ્લી 7-8 મિનિટ આપણે આહાર પર કાઢીએ. નવા આપતા પુત્રોને, નવા તો નહીં કહેવાય, સોરી, હવે નવા નથી, હવે તો બહુ જૂના થઈ ગયા, પણ હા, ઓકે. પોતાના પૈસાને સમય ખર્ચી, પોતાના પૈસાને સમય
ખર્ચી સતસંગ દેવા જાતા દાદાજી સતસંગ દેવા જાતા દાદાજી આપણી ભૂલોની માંગી લે માફી આપણી ભૂલોની માંગી લે માફી ઓહો જો ક્ષમતા પરમાત્માની ઓ જો સમતા પરમાત્માની કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ બીજું પણ એક ઘણા વખત જોવા મળેલું, જોડે રહેનારાને તો ઘણી રીતે અનુભવ હશે કે કોઈ પણ મહાત્માને हिंदी हाँ, दादाजी को जो थोड़े बहुत परिचय में आए उन्होंने देखा होगा कि कोई भी महात्मा की कालजी तो लेते ही थे, उनको खाना मिला, पीना मिला, सोना मिला, क्या नहीं मिला, मगर सबकी पूरी पता उनको होती थी। कोई किसी भी तकलीफ में हो तो दादाजी फिजिकली भी पैसा देते हुए हमने देखा है, फिजिकली भी मदद करवाते हुए हमने देखा है। और तब मुझे जाके ख्याल आता है कि महावीर भगवान ने जो साधर्मिक भक्ति या अनुकंपा की जो भी बात की है, भले मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भले अपने में ये जरूरी नहीं है, मगर सब चीज़ वो डेवलपमेंट और उसी के ऊपर से मेरा बाकी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो किसी को भी देखूं, यदि मैं सुख की दुकान की बात करता हूँ, एक पंक्ति नहीं लिखी कि सबके दुख जो ले लेता है उसके ऊपर भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। दादाजी ने वही काम किया पूरे जीवन में। भले मैं पूरा ना ले सकूं, मगर मेरी भावना तो रख सकूं, मेरा एटीट्यूड तो रख सकूं, कुछ तो करूं। तो अपने में अभी तो ये हम बस हमारे में हैं, आराम से मैं शुद्धात्मा हूँ, 5 में हूँ, मैं किसी को देखने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। और कोई आता है तो मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा व्यवस्थित त्रिमंत्र बोलो, असीम जय जयकारो बोलो, दादा को सौंपो। बात गलत नहीं है, पर तुमने क्या किया? क्या मैंने बोला उसके लिए कुछ? क्या मैंने कुछ प्रार्थना की उसके लिए? क्या मैंने, मेरा योगदान क्या है? तो मुझे तो लगता है कि मेरे पास जो कुछ आता है तो मेरा कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, भले जो भी रूप से हो, प्रार्थना के रूप से हो, और रूप से हो, सपोर्ट के रूप से हो, कुछ भी हो। नहीं तो मैं दादा को शायद पूरा नहीं समझा हूँ। और जो प्रसंग में मुझे जो भी थोड़ा बहुत ख्याल आता है, अभी आज ज्ञान विधि में बैठने का संयोग था, यहाँ समर्पण विधि दीपक आनंद जी करवाते, शैलेश जी को क्या करने का, तो अंदर से आवाज़ आई कि जितने आते हैं सबके शुद्धात्मा देखते जाओ, और सिमंदर स्वामी, प्रभु दादा, भगवान वितराग परमात्मा, सभी देवी देवताओं, उनके अंदर रहे हुए शुद्धात्मा के दर्शन करते हुए हम भावना और प्रार्थना करते हैं कि ये भेद विज्ञान की सामायिक उनको उत्कृष्ट रूप से परिणमित हो, उनके शुद्धात्मा स्वभाव जागृत हो जाए और मुक्तिगामी हो जाए। हर एक के लिए ऐसी प्रार्थना चली। तो वो मेरा समय का उपयोग थोड़ा बहुत जितना समझ में आया इतना मैंने किया। तो दादाजी तो ये कितनी सारी चीज़ अकेली रियल तो की नहीं उन्होंने, जो भी उनके पास संयोग आया, कैसे उनके दुख कम हो, कैसे उनको सुख मिले, पहले रिलेटिव में देखा, फिर जाके रियल दिया। क्योंकि उन्होंने देखा कि आज के काल में कोई ऐसा रियल वाला है ही नहीं, सब अपने दुख मिटाने के लिए आए हैं पहले तो या शायद या साधर पंकज भाई साहब को मालूम होगा कि साधर्मिक भक्ति किसको बोलते हैं। तो ये एक होती है चीज़ कि जितना थोड़ा बहुत हो पाए, और इतना विशाल समुदाय है हमारे पास, पैसे की ज़रूरत नहीं है, दिल की ज़रूरत है। दौलत की शायद ज़रूरत नहीं है, दिल की तो ज़रूर से है। दौलत नहीं मांग रहा है कोई। तो ये बात भी थोड़ी लक्ष्य में आई। जय सच्चिदानंद। यहाँ लक्ष्मी का चैप्टर पूरा कर देता हूँ। अभी 2-3 ही मिनट बची है। आहार की बात करूँ या छोड़ दूँ? करो। हाँ जी,
ओके, ठीक है, मुझे एक्सटेंशन दिया गया। तो आहार की जो बात है, भले ही उसको अपने में प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बट फिर भी दादाजी ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और फिर मुझे संजोग मिला तो मैंने दोनों स्टडी किया साथ साथ में, कि आज का साइंस क्या बोल रहा है और वितराग विज्ञान क्या बोल रहा है, और दोनों कहाँ मैच हो रहे हैं। नीना जी डॉक्टर साहब हैं तो उनको तो थोड़ा ज़्यादा मालूम चलेगा। तो पहले आज के साइंस के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बात करता हूँ, फिर वितराग विज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर दोनों कैसे एक हो रहे हैं अभी के टाइम में। तो आज का साइंस रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि वेजिटेरियन फूड, वेजिटेबल्स में से नेचुरल जो आता है उसमें बहुत फायदे हैं। वो प्रोटेक्शन भी करता है, रोगों से भी बचाता है, पर कैलोरी सबसे ज़्यादा पोषक तत्व देता है। और जो एनिमल फूड्स हैं उससे काफ़ी रोग होते भी। अब मान लो हम सब लोग एनिमल फूड्स नहीं ले रहे, मगर डेयरी तो ले रहे हैं ना। सो डेयरी को भी उन्होंने एक जगह पे वहाँ रखा है। अभी मुझे ख्याल आया कि वितरागों ने आगे चल के विघई का त्याग क्यों बोला था, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग, उसका कहाँ साइंस मैच। भले आज मैं नहीं कर पाऊँ, मगर साइंस मेरी दृष्टि में जब रहे। अभी आगे चलते हैं तो आज का साइंस भी बोल रहा है कि व्हाट शुड बी योर आइडियल फूड पैटर्न। तो बोले 60 से 70% कैलोरी ग्रीन्स, बीन्स, फ्रूट्स, सलाड्स वगैरह से में आनी चाहिए। और हमारी गुजराती की कैलोरी किस में से आती है? फरसाण, घी, तेल, मिठाई, 90% उसमें से आती है। और पूछ लीजिए इनमें से 45-50 के बाद कितने को कोलेस्ट्रॉल आता है, कितने को कोलेस्ट्रॉल की गोली चलती है, कितने को डायबिटीज चलता है और कितने को हाइपरटेंशन चलता है। तो साइंटिफिकली भी वो गलत हो रहा है अपने साथ। वितराग तो बोल ही रहे हैं, वितराग की बात तो कर ही रहा हूँ। तो तो फिर मैंने खुद तो चेंज करी है, मेरी पैटर्न कर रहा हूँ मैं, कि 50 to 60% उसके प्रेफरेंस भी है, जिनको चाहिए मैं दूंगा, प्रेजेंटेशन सब कुछ है रेफरेंस। बाकी का 25 से 30% ही सीरियल्स, ये अपना अनाज धन धान्य में से, और ऑयल घी में से हार्डली 5%। उससे ज़्यादा ऑयल घी का यूज़ नहीं होना चाहिए अपने डाइट में। तो गुजराती का डाइट तो पूरा शीर्षासन करना पड़े ऐसा है। मैं अमेरिका गया था 2018 में, बहुत संयम से खा करता था तो भी 7-8 किलो बढ़ा के आया, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा आ गया। यहाँ आके 6 महीना जाके मेहनत की तब जाके नॉर्मल हुआ। क्या हुआ? तो डाइट। तो ये मॉडर्न साइंस की बात की। अभी वितराग विज्ञान से चलते। अच्छा, मॉडर्न साइंस की एक और रिसर्च मेरे ध्यान में आई। अच्छा, दादाजी ने उस समय जो बताया था, अपने को जो बताया, वो अब तो पुत्रों को सबको मालूम है कि सादो सात्विक आहार। सादो मीन्स सरलता से, सिंपल। ये फरसाना, वो फरसाना, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, 10 आइटम नहीं चाहिए। सादो सात्विक मीन इजीली डाइजेस्टिबल एंड लाइट फूड चाहिए। ऐसा दादाजी ने हमको सिखाया था। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो मैं बात उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। और अब महात्माओं को भी ये दादाजी का मैसेज पहुँचा रहा हो कि आप तो पुत्रों को ऐसा मत खिलाओ कि दोनों ओर से नुकसान हो। आपका भाव हम स्वीकार करते हैं। तो सादो सात्विक आहार की बात दादाजी ने की थी, उणोदरी की भी बात की थी, वो सब महात्मा जानते हैं। अच्छा, रात्रि भोजन भले हमारे अक्रम में नहीं है, पर मुझसे खुद से दादाजी ने बोला था, मुझे ही डायरेक्टली, कि शैलेश रात्रि भोजन पर एक पुस्तिका तैयार करो। और 2 चीज़ बताई थी कि जैसे सूर्यास्त होता है, डाइजेशन का कमल वीक हो जाता है, सो एनीथिंग टेकन आफ्टर सनसेट इज नॉट इजीली डाइजेस्टेड। तो आप आगे समझ लेना। तो उससे मेरा चित्त और मेरा मन भी इतना जागृत नहीं रह सकता है। एक चीज दादाजी ने बोली थी। आज फिर मैंने देखा रिसर्च, जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला बॉडी रिदम एंड सन, उसके ऊपर से। अच्छा, दूसरी एक चीज आई आज के साइंस में, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैंने एग्जाम्पल्स काफ़ी देखे लाइव। मेरी बाजू में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनका डायबिटीज़ 400-500 हो गया एक बार। तो उसने ढूंढ निकाला, एक बुक है ऑल यू नीड टू नो अबाउट फास्टिंग, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात है। उसने विदाउट गोली, ऑलमोस्ट नो टेबलेट्स, उसका पूरा डायबिटीज रिवर्स कर दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग से। अभी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली बात वितराग विज्ञान में कहाँ बैठती है? यदि आप सूर्यास्त के समय समय पे खाना ले लो और सूर्योदय के बाद लो, तो ऑटोमेटिकली 13-14 घंटे का आपका फास्टिंग हो गया।
तो दादाजी ने और वितरागों ने बताया है कि आप एकाध समय खाना छोड़ देते हो, थोड़ा छोड़ देते हो, तो बॉडी की वाइटलिटी पावर को टॉक्सिन्स क्लीन करने का समय मिलता है, अपना मन भी अच्छा होता है, चित्त भी अच्छा होता है, शरीर भी अच्छा होता है। तो ये सब प्रिंसिपल्स आगे जाके तो एक ही हो रहे हैं कि जो हमारे वितराग बता के गए हैं वो कितना साइंटिफिक हैं, वो आगे जाके मैच ही हो रहा है। तो मैं तो ऐसा मेरे खुद के लिए मैं कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि भले अपने को अक्रम मिला है, भले सब कुछ मिला है, मगर जहाँ तक ये फाइल एक अपना साथ ठीक ढंग से नहीं देती है, वहाँ तक अपने को परेशानी भी कर सकती है। और अपने ज्ञान में दादाजी ने बोला मित्र है उसको संभालो, और मित्र को संभालने के लिए एक आहार, और ये तो स्थूल बात करी मैंने, दादाजी ने तो आगे की बात करी है कि चित्त की हाजिरी में उपयोग पूर्वक वगैरह वगैरह। फिर उसमें से मुझे एक और चीज ध्यान में आई, पंकज भाई साहब और हरीश भाई साहब, कितने प्रकार के आहार होते हैं? कोई बोलेगा मुझे? एनीबडी इज फ्री टू आंसर। हाँ, आगे आके बोलो तो सुनाई नहीं देता है। सात्विक, तामसिक एंड रजत। वो ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो मैं क्या बोलता हूँ, फूड फॉर बॉडी, उसमें 3 प्रकार दे दिए आपने। क्या कोई फूड फॉर माइंड जैसी चीज होती है? फूड फॉर सोल होता है? नहीं होता है। ये 5 इंद्रियों से जो अंदर जा रहा है, मेरे मन और चित्त को असर कर रहा है, वो फूड, एनी इनपुट गोइंग इनसाइड, नॉट ओनली थ्रू माउथ, इज फूड। इट कैन बी फूड फॉर बॉडी, इट कैन बी फूड फॉर माइंड, जो मेरे मन और चित्त के ऊपर असर करता है, मेरी वृत्तियों पर असर करता है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आत्मा का खुराक है ना, सत्संग आत्मा की आहार है। तो इसलिए कविराज ने लिखा ना, सर्व आहार विहारो माँ सत्संग होना चाहिए। तो फूड भी एक प्रकार का नहीं है, और ये इसलिए मुझे हेल्पिंग कर रहा है कि मेरे 5 इंद्रियों से क्या अंदर जा रहा है उसके ऊपर भी मैं थोड़ी जागृति रखूँ। व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप में चार्ज नहीं लगता, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे बॉडी में चार्ज नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ देखता रहूँ तो मेरा चित्त कौन उसको साफ करेगा? तो वितरागों ने हर चीज पर ध्यान दिया है कि मेरे अंदर क्या, जैसे क्या जा रहा है, और उससे भी सूक्ष्म में जाए, यदि उससे भी सूक्ष्म में जाए तो दादाजी ने बताया पूरा ब्रह्मांड परमाणु से भरा हुआ है। जहाँ आपकी वृत्तियों शुद्ध उपयोग की ओर जाए, ऐसे सत्संग में रहो, और जहाँ ये परमाणु के असर से आपका डिरेलमेंट हो, वहाँ से भागो, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से आपको असर करता है। क्या करता है? सूक्ष्म रूप से। तो स्थूल आहार भी होता है, सूक्ष्म आहार भी होता है, अनेक प्रकार के इनपुट्स बॉडी के अंदर जाते हैं। एक सिर्फ एक रफ स्केच दिया मैंने, फिर तो जिनको इंटरेस्ट है और डिटेल में सब जगह पे जा सकते हैं। जय सच्चिदानंद। पता नहीं मेरा ये ड्रामा 8:30 से 9:30 दिया गया था इन लोगों से, परीक्षा में मैं पास हुआ कि नहीं हुआ, मगर दादाजी को सौंप के जो भी कुछ बात करी हमने। जय सच्चिदानंद। हाँ जरूर सर। पाणी तेवी वाणी, आहार तेवू मंथन। पाणी तेवी वाणी, आहार देवो मंथन। सर्वाहारे भोजन माहो सत्संग। सर्वाहारे भोजन माहो सत्संग। भोजनालय शौचालय। भोजनालय शौचालय। पूर्ण गलनने शुद्धात्मा। पूर्ण गलनने शुद्धात्मा। आटली ज प्रतिष्ठामा। आटली ज प्रतिष्ठामा। तन्मय छे जगतात्मा। तन्मय छे जगतात्मा। रोज सवारे वेला उठीने। रोज सवारे वेला उठीने। दातण उलियाने चा पाणी। दातण उलियाने चा पाणी। लोट
લોટો સંડાસને નાવા ધોવામાં લોટો સંડાસને નાવા ધોવામાં ચારિત્ર મોહિની વપરાણી ચારિત્ર મોહિની વપરાણી ભમરડો ભરમાલય મરદો ભરમાલય એવોથી ઘુમતા મૂઢાત્મા તેઓથી ઘૂમતા મૂઢાત્મા હું જ કરું છું માને તેથી હું જ કરું છું માને છે તેથી મારું કહી વીટાય મમતાત્મા મારું કહી વીટાય મમતાત્મા જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે આહારી આહાર કરે નિરાહારી જાણે માત્ર આહારી આહાર કરે નિરાહારી જાણે માત્ર આજ વાક્ય આરાધને ભણી લીધા સર્વે શાસ્ત્ર આજ વાક્ય આરાધને ભણી લીધા સર્વે શાસ્ત્ર હો 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 માત્ર ખાણું પીણું દાદાજીને અર્પાય છે માત્ર ખાણું પીણું દાદાજીને અર્પાય છે વિધિ ખાતા પૂર્વે સહેજા સહેજ થઈ જાય છે વિધિ ખાતા પૂર્વે સહેજા સહેજ થઈ જાય છે और सबसे अंतिम सूक्ष्म बात शायद आहार से जुड़ी हुई दादाजी ने भी बोला है, शायद वो अन्य वितरागों ने भी बोला है कि ये आहार के रस और मन की ग्रंथियाँ जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक आप आहार के रसों में फंसे हैं वहाँ तक मन का निर्ग्रंथ होना या मन की ग्रंथियों में से बिल्कुल मुक्त होना वो बहुत पुरुषार्थ मांग रहा है, या तो दोनों मैं बोल रहा हूँ मगर कहीं न कहीं मैं मन की ग्रंथियों में फंसा हुआ हूँ, तभी तो आहार में फंसा हुआ हूँ। दादाजी से प्रार्थना करते हैं कि हमको वो उजाला दे ताकि हम विज्ञान से उसमें से मुक्त हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने ऐसा बताया है कि धर्म की शुरुआत आहार के विवेक से होती है और धर्म यानी कि विज्ञान की पूर्णता आहार का संपूर्ण ज्ञान से, यानी आखिर में जो भीतर ज़रूरी है सहज में वही लिया जाता है। और जो हमने दादा भगवान के पास ये बड़े स्पष्टता से देखा था, वो ऐसे ही कुछ खाते नहीं थे। ये बात है। जय सच्चिदानंद।